नमस्कार। सुनैना हजारीलाल कथक की एक अनन्य विभूति, कथक के जानकी प्रसाद बनारस घराने की एक प्रतिनिधि। उनकी आज अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति है। न केवल देश अपितु विदेश में भी उनकी शिष्यों की एक परिपक्व परंपरा है। वे जानकी प्रसाद बनारस घराने की ध्वजवाहक है। आज उनसे मुलाकात हमारे दर्शकों के लिए एक खास मुलाकात होगी। हमने इस आयोजन में वैसे आपकी मुलाकात समय समय पर कथक के शीर्ष कलाकारों से करवाई। आपने उसे सराहा भी और समय समय पर अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें समृद्ध भी किया है। हमारा उद्देश्य है और हमारा प्रयास भी यही रहा है कि कथक के कला स्वरूप, परंपरा और प्रयोग, परंपरा और विस्तार और प्रयोग और नवाचार को हम आपके समक्ष रख सकें। इसी श्रृंखला में जानकी प्रसाद बनारस घराने की वरिष्ठ गुरु सुनैना हजारीलाल आज हमारे साथ उपस्थित हैं। तो देखते हैं इस विलक्षण कलाकार की जीवन यात्रा, कथक साधना। तो करते हैं श्री गणेश। Pandit Janki Prasad ji was the direct descendant of Pandit Shamal Das ji, who served in the court of Maharaja Anup Singh ji of Bikaner Kingdom in 17th century. In 18th and 19th century, the Bikaner had become a great center of arts, and Pandit Janki Prasad ji benefited immensely from the influences around him and became a renowned dancer and scholar. Janki Prasad ji observed that the dancers of that era mostly used tabla and pakhawaj compositions for their dance. He felt that this gave credit to the composers, tabla players and pakhawaj players who composed these pieces. He asked himself a radical question: what about a language in dance and its unique compositions? Janki Prasad ji had left Bikaner to settle in Banaras to deepen his spiritual pursuits and find an answer to the question which was troubling him immensely. He was a Sanskrit scholar. He studied the Richas of the Vedas, and finally he made a radical innovation. He added new syllables to the already existing dance language. These Natwari syllables relate to the sound created by the feet on the ground. The Janki Prasad style had immense variety of Natwari compositions not found in other styles. The bowls were woven into lyrical composition which Guruji recited beautifully. This Gharana had made use of heels in the footwork so that there was no distortion of body. जानकी प्रसाद बनारस घराने के शीर्ष गुरु हजारीलाल जी की शागिर्द गुरु सुनैना हजारीलाल सर्व प्रतिष्ठित हैं। उन्हें देश के बहुत से महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं पद्मश्री, संगीत नाटक अकेडमी सम्मान एवं अभिनय कला सरस्वती महाराष्ट्र गौरव सम्मान। जानकी प्रसाद बनारस घराने की अपनी अलग विशिष्टताएं हैं, जो इसे अन्य घरानों से स्वायत्त पहचान लेती हैं। आप जरूर उत्सुक होंगे इस घराने की विशेषताओं के बारे में जानने के लिए।
तो आइए सुनैना हजारीलाल जी से ही सुनते हैं इस घराने की सूक्ष्मताओं को जो वे आधिकारिक रूप से आपके लिए पेश कर रहे हैं। He felt that the dance was not merely for entertainment, but the dancer's role was to spiritually uplift the audience. When we talk about a gharana, it should be different in every respect, in content, in the compositions, in thought, in way they treat Abhinay pieces. Everything should be different, and then we call it a gharana, a style. In thought, you will see Bamaina thought and Tantkari thought. Bamaina thought, the dancer tunes her body as it were for the performance and brings out the flow of lay and shows different moods. And in Bamaina, the dancer stops at any matra and then takes an idea or a theme to come to the sum.
one composition for you. Ta dig dig thei tram thei dig dig thei ta 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 thei ti da dig dig thei tram thei ta 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 dig dig thei 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 dig dig da dig dig da dig dig da dig dig ta 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 dig dig thei thei dig dig ta dig dig da dig dig da dig dig ta ta dig dig thei dig dig da dig dig da dig dig da dig dig ta 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 dig dig thei. These compositions show that the gharana has how the gharana maintains the beauty of the body line while keeping pace with the fast moving syllables executed by the feet. So let us watch this small piece of Nritta. Kathak dancers used to do their Abhinay pieces in sitting posture, using their facial expressions and hand gestures to elaborate on one word or the whole line of the piece by offering different interpretations. This was done in mehfils where the audience was quite near and they could see minor changes in expression like raising an eyebrow, moving the neck, moving the wrist, anything minor they could watch. After independence, the theatres were bigger and the audience was large. A change was necessary for presentation. From start, Guru Hazari Lalji was an innovator in Angi Abhinaya. He introduced some body movements along with the continuous feeling and flow of expression that helped our Abhinay piece to connect with the audience.
इस तरह की कथक में जानकारी मिलना दुर्लभ है, विशेष रूप से इस विधा में जो प्रदर्शनरत है और वे विद्यार्थी जो अध्ययन और शोधरत है। उनके ज्ञान में जरूर ही इसको देखकर सुनकर वृद्धि होगी। चलिए बढ़ाते हैं अब बातचीत का सिलसिला और सुनैना हजारीलाल जी से हमारे कुछ और प्रश्न भी हैं। सुनैना जी, आपका स्वागत है। नमस्ते चित्रा जी। दीदी, आज आपसे एक जो सबसे पहला प्रश्न है कि घरानों के रूप में ही कथक को एक पहचान भी मिली और घरानों ने उसको समृद्ध भी किया है। वहाँ के कलाकारों के सृजन से समृद्ध हुआ, उसका विस्तार हुआ। तो दो प्रमुख घराने हैं, लखनऊ और जयपुर। बनारस घराना, जानकी प्रसाद बनारस घराना एक बहुत ही प्राचीन और प्रतिष्ठित घराना है जिसकी आप ध्वजवाहक भी हैं। तो मेरा जैसा कि एक अपना एक अनुभव है और जो जितना मैंने समझा कि हमारे भारत में लखनऊ और जयपुर घराने के कलाकारों की भी एक प्रतिष्ठा है और घराने बतौर भी वो एक प्रतिष्ठित है। लेकिन ये इतना प्राचीन घराना होने के बावजूद भी ये उतना दृश्य में क्यों नहीं आ पाया, और उसको मैं प्रतिष्ठा शब्द तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, दृश्य में आना, उसका कोई खास कारण है, वो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। आपने जो घराने की बात पूछी है वो 1960s के समय में सत्य हो सकती है, लेकिन ये घराना बहुत ही प्राचीन है और वर्तमान में तो ये घराना अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। और किसी घराने की प्रतिष्ठा का मापदंड उसकी प्रसिद्धि और पॉपुलैरिटी पे नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। ये सच है कि जब 1958-57 में जब मैंने नृत्य शुरू किया, तब उस वक्त जो नर्तक थे वो रंगमंच पे केवल दो घरानों का नाम लेते थे, लखनऊ और जयपुर। जब मैं अपने गुरु के पास गई तो उन्होंने पहला प्रश्न मुझसे ये पूछा था कि आप क्यों सीखना चाहती हैं डांस? क्या आपको बहुत प्रसिद्धि चाहिए या बहुत पैसे चाहिए या तो फिल्मों में आप जाना चाहती हैं? तो मैंने कहा इसमें से मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मैं केवल ज्ञान चाहती हूँ, नॉलेज चाहती हूँ। और मैंने उनका नृत्य कॉलेज के दिनों में देखा था, तो मुझे इतना खूबसूरत नृत्य कभी भी देखने के लिए में नहीं मिला था। तो मैं चाहती थी कि वो मैजिक मैं सीख सकूं। फिर गुरुजी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन हम लोग जब सीख रहे थे, तब हम लोग जब प्रोग्रामों में जाते थे तो नर्तक लोग केवल दो घरानों का नाम लेते थे, लखनऊ और जयपुर। हमारे घराने की बंदिशों को नाचने के बावजूद वो इस घराने का ना नाम लेते थे, ना उसके कंपोजर का नाम लेते थे। इस बात से मुझे बहुत ही कष्ट होता था। और चित्रा जी, मैं सच कहूँ तो इसी कारण की वजह से मैंने नृत्य को प्रोफेशन के रूप में लिया, क्योंकि मेरे पिताजी तो रेलवेज में कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी थे। शौक से मैं सीख रही हूँ तो सीखूँ, बेशक उनको कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि मैं इसको प्रोफेशन के रूप में लेना चाहती हूँ, तो हमारे घर में सभी बहुत नाराज़ हुए और बिल्कुल वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि मैं इसको प्रोफेशन की तरह से लूँ। लेकिन इसी कारण की वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। ये कारण ये था कि उस 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो नृत्य सम्राट आशिक हुसैन और उनके साथ जो दो चार अच्छे, मीरा बख्श, ऐसे बहुत से लोग थे, सादी गुड डांसर्स, दे हैड माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। और इंडिया में मेरे गुरु जो थे वो पूना में प्रशिक्षण दे रहे थे, क्योंकि उनका ऑपरेशन हो गया था, वो डांस नहीं कर सकते थे। कृष्ण कुमार जी थे, वो बरेली में अपनी नृत्य साधना में मग्न थे, उनको कुछ मालूम नहीं था क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में। तो जब 1950s में एकेडमीज फॉर्म हुई
तब इन लोगों को कुछ पता नहीं था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर एकेडमी ने खाली 2 घरानों को मान्यता दी, लखनऊ और जयपुर, और कथक केंद्र में इनके गुरु प्रशिक्षण देने लगे। तो गुरु जी की इच्छा थी कि कोई स्टेज पे तो आए और हमारी स्टाइल बताए, तभी लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये घराना क्या है। तो फिर मैं और मेरे साथ 4-5 शिष्य थे। हम लोग बहुत रियाज करते थे, और उसके बाद हम लोग कोई भी प्रोग्राम देखने जाते थे तो हमको बहुत दुख होता था कि ये घराना क्यों नहीं लोग नाम दे रहे। उस वक्त हम लोगों ने 1971 में ये प्रयत्न किया था कि एकेडमी में हमारे घराने को भी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो एक पिटीशन गया था जिसमें डागर साहब और अल्लाह रखा खां साहब, अमीर खां साहब, निज़ामुद्दीन खां साहब, इनाम अली खान और बड़े बड़े कलाकारों ने पिटीशन पे साइन भी किया था, लेकिन उसके बारे में कुछ हुआ नहीं। और मैं समझती हूँ कि अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो कथक केंद्र में है आर्टिस्ट एक दूसरे का देख के वो तो कॉपी कर, मतलब वो विशिष्टताएं अपने में आ ही जाती हैं। तो यू विल सी द लाइन ऑफ डिमार्केशन इज़ वेरी थिन, और हमारा घराना एकदम ही भिन्न है। और इस बात की मुझे खुशी है कि हमारे घराने को कोई प्रेजेंटेशन नहीं मिला। और जो शिष्य गुरुजी के पास आते थे वो भी पैसे के लालच में या प्रसिद्धि के लालच में फिर दूसरे गुरुओं के पास चले जाते थे। इसलिए मेरे गुरु ने अपनी जो विशिष्ट बंदिशें हैं वो सिखाना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसके बाद मुझे संगीत नाटक अकेडमी और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से स्कॉलरशिप मिली कि भी अपने घराने की विशिष्ट बंदिशों को रिवाइव करूं। और फिर मैंने उसके ऊपर बहुत कुछ काम किया, लेकिन मेरा प्रशिक्षण होने के बाद भी मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया जाता था। सबसे पहले मुझे जो मौका मिला वो 1974 में इंग्लैंड जाने का। वो रविशंकर जी के भतीजे थे, वीरेंद्र शंकर, उन्होंने मेरे घर पे आए थे और उनको बहुत ही स्टाइल पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि तुम इंग्लैंड इस वक्त ज़रूर आ रही हो। उसके बाद मैंने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि इतने प्रोग्राम मिलने लगे फॉरेन में। 1974 से लेके 1991 तक मैंने कम से कम 31 टूर्स कर लिए थे। और जब मुझे फॉरेन में प्रसिद्धि मिली तब इंडिया में भी लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। इट्स सैड बट इट इज़ ट्रू। दीदी, आप गुरु हजारी लाल जी की पत्नी हैं, लेकिन उसके पहले उनकी आप एक शागिर्द हैं। तो गुरु जी का जो एक शिक्षण पद्धति थी वो किस तरीके की थी, और उनका अपने कथक के प्रशिक्षण देने में किन किन बातों पर ज़्यादा आग्रह होता था, किन किन बातों को वो केंद्र में रखकर और आप लोगों का जो है वो एक शिक्षा देते थे? जब मैंने नृत्य सीखना शुरू किया उस वक्त गुरुजी के पास 4 या 5 ही शिष्य जो थे वो उनसे सीख रहे थे। हम लोग 3:30 बजे दोपहर को पहुंच जाते थे भारतीय विद्या भवन, और लगभग 7, 7:30, 8 बजे तक रियाज करते थे। गुरुजी की स्वयं की शिक्षा अलग पद्धति से हुई थी। उनके गुरुजी ने 4-5 बरस तक उनको केवल तत्कार कराया था, और वो सिर पे चोटी उनकी खिले पे बांध के वहीं रियाज करते थे। वो पसीना निचोड़ निचोड़ के बाल्टियां भरते थे। और उन्होंने चिल्ला भी खींचा था 15 दिन का, 21 दिन का, जिसमें उनको केवल खाने के लिए और 4 घंटा रेस्ट करने के लिए वक्त मिलता था। बाकी सारा टाइम रियाज करना पड़ता था। लेकिन गुरुजी उस शिक्षा पद्धति के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि मॉडर्न ज़माने में ही नहीं चलेगा, ओवरऑल शिक्षा देनी पड़ेगी। और उनको जल्दी भी थी कि उनके घराने का कोई शिष्य जल्दी से जल्दी रंगमंच पर आए।
तो पहले तो उन्होंने तत्काल से शुरू किया, और तत्काल के साथ साथ बंदिशें, उनको कैसे रिसाइट करना और कैसे अंग संचालन से उसको प्रस्तुत करना, ये 3-4 साल तक चला। उसके बाद उन्होंने अभिनय सिखाना शुरू किया। अभिनय सिखाने में भी उनकी ये इच्छा थी कि हम केवल गुरु को देख के अभिनय नकल करें, वो नहीं, अपनी मन से वो भाव आने चाहिए चेहरे पे। उसके लिए उन्होंने नाट्य शास्त्र, ये सब हिंदी लिटरेचर जैसे अयोध्या सिंह हरिऔध, रत्नाकर, बिहारी और बहुत से अच्छे अच्छे कवियों की कविताएं को पढ़ के उनके ऊपर मनन करने के लिए वो हमेशा हमको उत्साहित करते रहते थे। उसके बाद जब मैं उनकी पत्नी बन गई तो मेरा तो 24 घंटे का साथ उनके साथ रहता था। कभी कभी वो रात को 2 बजे उठा देते थे और कहते थे कि सुनैना ये बंदिश लिखो, मुझे अभी अभी याद आई है, अभी अभी मैंने बनाई है। तो मैं लिखना शुरू करती थी। उस वक्त रिकॉर्डिंग मशीन नहीं था, न टेप रिकॉर्डर था, कुछ नहीं था, तो होगा लेकिन हमारे पास नहीं था। तो मैं जब तक लिखती थी तब तक वो भूल जाते थे, फिर दूसरी बंदिश शुरू हो जाती थी। तो इस प्रकार मैंने उनके साथ रह के नृत्य की शिक्षा ली। और सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा तब मिला जब उनके घर में, हमारे घर में बहुत बड़े बड़े कलाकार जैसे थिरकवा खां साहब, निज़ामुद्दीन खां साहब, लतीफ़ अहमद खां साहब, इनाम अली खां साहब और बड़े बड़े गवैये उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा, और सब इनसे मिलने आते थे और उनका घंटों तक चलता रहता था वाद विवाद, और मैं सुनती रहती थी। और उससे मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ऐसे क्लास में आके 1 घंटा सीखने से नहीं मिल सकता है। दीदी, आप उस समय की हैं जबकि गुरु शिष्य परंपरा के दायरे में रह के ही शिक्षण होता था, लेकिन वो समय और आज का बदलता हुआ समय, और ख़ास तौर पर ये समय जबकि एक स्क्रीन में सिमटा हुआ समय है, तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में रहकर जो शिक्षण हुआ उसका एक शिष्य को ज़्यादा फायदा मिलता है, या आज एक उस परंपरा में नहीं रहकर सीख पा रहे हैं बच्चे, तो वो ज़्यादा बेहतर सीख पा रहे हैं, या गुरु शिष्य परंपरा ही एक अच्छा जगह है जहाँ से एक शिक्षण पद्धति समृद्ध हो सकती है? सीखने की पद्धति में गुरु शिष्य परंपरा मुझे तो सबसे उत्तम लगती है, क्योंकि उसमें आप गुरु जी के साथ सतत रहते हैं, उनका साथ मिलता है, उनके विचार आप जान सकते हैं, और गुरु के मन में कभी भी कुछ आया तो वो आपको फौरन सिखा सकते हैं। और जिसको इस नृत्य में ही कोई प्रोफेशन बनाना है, मेरे हिसाब से उनको गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही सीखना चाहिए। अभी आजकल का ज़माना ऐसा आ गया कि बहुत सारी चीज़ें उनको सीखनी पड़ती है। कोई टेनिस करता है फिर डांस भी करता है, कोई पेंटिंग करता है और डांस भी करता है, तो उनके लिए अलग बात है। लेकिन जो डांस में ही करना चाहते हैं उनको, मेरे को ऐसा लगता है कि उनको गुरु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, जिससे उनके गुरु के क्या विचार हैं, क्या उनकी सोच है, वो बातों बातों में ही मालूम पड़ जाती है। और इसलिए मुझे लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा सबसे उत्तम पद्धति है किसी भी कला को सीखने के लिए। दीदी, जैसे अभी आजकल तो एक हमारे कार्यक्रमों की विविधताएं और विभिन्नताएं लाने के चक्कर में ही कह सकती हूँ कि उसमें नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, और परंपरा से यहाँ तक कि थोड़ी बहुत छेड़छाड़ भी उसमें हम देखी जा सकती है। तो आपका इन प्रयोग के विषय में आपका क्या विचार है? आपने जो चौथा प्रश्न पूछा है प्रयोग के बारे में, हर एक कलाकार को प्रयोग तो करने ही चाहिए,
क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो प्रयोगों की संभावना बढ़ती जाती है। एक्चुअली आजकल इतने शिष्य तैयार होने लगे हैं कि सबको मौका देना मुश्किल होता है, इसलिए ग्रुप कॉम्पोजिशंस आजकल ज़्यादा निकले। लेकिन कथक का तो पहला का स्वरूप वो एकल नृत्य ही था, जिसमें कलाकार का पूरा ओवरऑल इवैल्यूएशन हो सकता था कि वो तत्कार में कितना पारंगत है, अंग में कितना पारंगत है, भाव कैसे कर रहा है। लेकिन ग्रुप डांस में ऐसे चल जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो फिर एक के ऊपर ध्यान नहीं जाता है। और बहुत से अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने इस तरह के प्रयोग किए हैं, और आई थिंक इट इज़ ए हेल्दी थिंग टू डू एक्सपेरिमेंट इन दिस फील्ड। कहते हैं कि जो नृत्य है वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसके साथ जो संगति करते हैं तबला, पखावज और अन्य लहरा पर, उनकी भी एक खास भूमिका होती है नृत्य में। तो उन संगतकारों की भूमिका के बारे में आपका क्या विचार है? हमारे संगीत के फील्ड में एक कहावत कहेंगे मशहूर है कि उत्तम गाना, मध्यम बजाना और निखत नाचना। इसलिए कहा जाता है कि गाने वाला तो कहीं भी किसी रूम में बैठ के गा सकता है और उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई उसके साथ संगत करे। ऐसे ही सितार वादक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ही कैन प्ले। लेकिन डांस के लिए आपको सब ताम झाम की ज़रूरत है, एक गाने वाला, एक तबले वाला, ये तो मिनिमम, और एक लहरे वाला तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे संगतकारों की भूमिका में, कथक में संगतकारों की भूमिका का बहुत महत्व है कथक में। वैसे तो हम तबला, पखावज, सितार, सारंगी, फ्लूट ये सब लेते हैं और वोकल अकम्पनीमेंट तो होता ही है। लेकिन एक कलाकार को इतना पारंगत होना पड़ता है कि वो इन सब को गाइडेंस दे सके ऑन द स्टेज, बिकॉज everything is in his hand, the dancer's hand. और for that उनको तबले का नॉलेज, गाने का नॉलेज, गाना भी आना चाहिए। हर एक नाट्य शास्त्र में भी लिखा है कि डांसर शुड बी ए गुड सिंगर। तो वो सब ज्ञान होने से वो अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से प्रस्तुत कर सकता है और एक्म्पनीज को अपने पीछे पीछे फॉलो करने के लिए कह सकता है। तो संगतकारों का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है कथक डांस में। दीदी, आपका बहुत लंबा समय है कथक के साथ जुड़ा हुआ, इस कला के साथ जुड़ा हुआ, जिसमें आपके देश विदेशों बहुत सारे अनुभव हैं। लेकिन कोई एक ऐसा संस्मरण ज़रूर आपकी एक ज़िंदगी में होगा जो हमेशा आपको एक गुदगुदा देता होगा और वो आपको हमेशा स्मरण में रहता होगा। तो वो जो संस्मरण है वो आप हमसे ज़रूर साझा कीजिए। 50-60 साल, 50-55 साल तक मैंने नृत्य किया है और संस्मरण भी बहुत सारे हैं। लेकिन जो मेरे दिल और दिमाग पे छाप छोड़ गए हैं, ऐसे एक दो मैं आपके सामने वर्णन करूंगी उनका। एक दफ़े मैं न्यूयॉर्क अमेरिका गई थी, तो जाकिर भाई मेरे साथ थे और हम लोग ने लॉस एंजलिस में प्रोग्राम दिया और प्रोग्राम करीब 11 बजे रात को ख़त्म हुआ और मेरी फ़्लाइट थी न्यूयॉर्क की 12 बजे की। और इतनी स्पीड में जाकिर भाई हमको जैसे तैसे एयरपोर्ट पे छोड़ा और हम फिर न्यूयॉर्क आ गए। न्यूयॉर्क में जब हम आए तब उस वक्त लगभग 6 बजे होंगे सुबह के, और 3 बजे मेरा प्रोग्राम था न्यूयॉर्क में महाराष्ट्र मंडल में। और कुछ सोने का मौका नहीं मिला था, जल्दी जल्दी कुछ खा के 2 घंटा आराम करके हम पहुंच गए। और उस वक्त हमारे साथ कोई हमारा म्यूजिशियन भी नहीं था, तो
एक मोतीहार करके वहाँ सितार बजाते थे, उनको हमने ले लिया था नगमे पे। और मेरे गुरुजी जो तबले पे थे ही, और एक डॉक्टर थे, याद नहीं है नाम, अभी भूल गई, उन्होंने गाना गाया। उस वक्त मैंने जब मैं परफॉर्म कर रही थी, लोग ऐसे बैठे हुए थे नज़दीक एकदम, और वो सब दिन होत नहीं एक समान जो भजन हमारे घराने का बहुत ही पॉपुलर है, उस पर मैं भाव कर रही थी। और भाव करने के बाद जब वो ख़त्म हुआ और मैंने आंखें दौड़ाई चारों तरफ, तो हर एक ऑडियंस के प्रत्येक व्यक्ति रो रहा था उस वक्त। और मैंने गुरुजी को बोला कि ये रो क्यों रहे हैं? तो बोले कि अभी तुम उस जगह पे पहुंच गई हो कि यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ और लोगों पे इतना असर डाल सकती हो कि लोगों के आंखों में आंसू आ जाए। और एक 1981 में मैं इटली गई थी, फ्लोरेंस फेस्टिवल में हिस्सा लेना था मुझे। तो मैं और गुरुजी और मेरा लड़का सरोद पे हम लोग निकल गए आगे, क्योंकि एक हफ्ते पहले हमारा वहाँ पे वर्कशॉप था टोरिनो, और हमारे जो संगत में जो गाने वाले थे वो पीछे से आने वाले थे। तो क्योंकि उस वक्त एलिटालिया की फ़्लाइट एक हफ्ते में एक ही होती थी, जो बॉम्बे से मिलन जाती थी। तो हम लोग सब तैयारी सब हो गया। हम लोगों को रात को मेरे ब्रदर इन लॉ का मैसेज आया कि उसको तो प्लेन में चढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि उसके पास ECNR नहीं था। तो मैंने कहा कि अब क्या करें? तो अब उसके बाद वो नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद फ्लाइट थी दूसरी। चिंता में मैं पूरी रात नहीं सो सकी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह हमको फ्लोरेंस के लिए निकलना था। तो मैंने अपनी आवाज़ में वंदना गा दी और रिकॉर्ड कर दिया। फिर और एक दो दिन एक गाने थे वो रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और मैंने उनको अपनी डिफ़िकल्टी बताई, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप रिकॉर्डिंग पे तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि इन दिस फेस्टिवल रिकॉर्डिंग इज़ नॉट अलाउड। अब मैं इतनी चिंता में हो गई कि अब क्या करेंगे, इतना खर्चा करके हम आए हैं इस फेस्टिवल के लिए। फिर उसके बाद में उसके मुंह से निकल गया कि और भी इंडिया से आने वाले हैं, वो लोग अमेरिका गए हुए हैं, वो अभी शाम तक आ जाएंगे। तो मैंने कहा कौन है वो? तो बोले कि जाकिर हुसैन। तो मेरे एकदम मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो जाकिर हुसैन है तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। फिर मैंने जब वो होटल में आए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप हमारी मदद कर देंगे, आप हमारी संगत कर लेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। और मेरे साथ एक अजय चक्रवर्ती जो हैं वो गाते भी अच्छा है और वो नगमा बजा देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम को भगवान ने बचा लिया उस वक्त। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जाकिर भाई की और अजय चक्रवर्ती जी की कि उन्होंने हमको उस वक्त मदद की। और गाना भी उन्होंने गा लिया, लहरा भी बजा लिया और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हो गया। दीदी, आपकी एक बहुत समृद्ध परंपरा शिष्यों की भी है, देश में भी विदेशों में भी। तो मैं ख़ास तौर पर मतलब मैं भारत के विषय में ही आपसे बात करना चाहूँगी कि आप कौन से अपने शिष्यों में भारत में इस जानकी प्रसाद बनारस घराने के अस्तित्व को देखते हैं कि वो इसके भविष्य को समृद्ध करेंगे वो शिष्य? तो उन शिष्यों के बारे में आप हमको ज़रूर बताएं। वैसे तो मेरे क्लास में बहुत सी लड़कियां आती हैं जो हफ्ते में 2 दिन 1 घंटा सीख के चली जाती हैं, लेकिन उन पर मैं इतना डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो केवल हॉबी के लिए सीखते हैं। उनके माँ बाप उनको क्लास में भेजते हैं जिससे उनको कोई कला का ज्ञान मिले। हजारों शिष्यों में एक ऐसा निकलती है जो
जिसमें वो आग होती है कि वो कुछ करके बताए। और वैसे शिष्यों में मेरी सबसे पुरानी और सबसे प्रिय शिष्य है निशा जवेरी, जो हांगकांग में रहती है और वो क्लास भी चलाती है और प्रोग्राम्स भी देती है, और इंडिया जब आती है तो मुझसे सीखती भी है। और इसके अलावा बॉम्बे में मेरी स्टूडेंट्स हैं, शाहबाज शेख है, शीतल मावलनकर है, दीपांशी शर्मा है, भावना दंड है। ये सब बहुत मेहनत से सीख रहे हैं और आगे जाके ज़रूर इसमें सफल होंगे। इसके अलावा अनुराधा सेतुरामन है, अरुणा स्वामी है, और अमेरिका में एक वेरोनिका डिसूजा है जो न्यूयॉर्क में रहती है, और एक वृंदा मालवी है जो सैन फ्रांसिस्को में रहती है। वो अब जब मैं अमेरिका जाती हूँ तो मेरे पास आके सीखती हैं, ऑनलाइन भी सीखती हैं। और एक है काया जो नेदरलैंड की है, और एक मालू है जो स्विट्ज़रलैंड में है। वो भी ऑनलाइन सीखती हैं और जब भी इंडिया आती हैं तो मेरे पास आ जाती है सीखने के लिए। एंड दे आर ऑल डूइंग ग्रेट वर्क इन देयर फील्ड। दे आर ट्राइंग टू टीच दिस स्टाइल टू अदर्स। तो मुझे पूरी आशा है कि मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस घराने को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की हमारी एक दुर्लभ जानकारी और महत्वपूर्ण बातचीत दोनों ही उन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगी जो कथक को अध्ययन के रूप में भी अपनाए हुए हैं और प्रदर्शन के रूप में भी। सुनैना जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया और इतनी सुंदरता से उसके इतिहास से लेकर और उसकी बारीकियों को, उसकी सूक्ष्मताओं को हम लोगों के सामने रखा। तो आपके लिए हम हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।